Assalamu alaikum everyone, my name is Mohammed Bilal Masood and I'm back with another video। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि मेरी आई थिंक सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट वीडियो थी हाउ टू कैलकुलेट कैलोरीज फॉर लूजिंग वेट, तो उसी से मिलती जुलती ये सेकंड वीडियो है हाउ टू कैलकुलेट कैलोरीज फॉर वेट गेन। तो उसका मेन फोकस जो था वो वेट लूज़ के बारे में था और इसका मेन फोकस जो है वो हम मेन लेके चलेंगे फॉर वेट गेन। तो ये एक इंटरनेशनल एक और यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियो है जो मैंने काफ़ी डिफरेंट वीडियोस रिव्यू करके उसमें से एक वीडियो जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू आप लोगों के लिए कैरी ऑन है कि भाई आप इसको लेके चल सकते हैं और आपको चीज़ों की समझ भी आ जाएगी। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि अगर चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएं तो वो फिर उनको समझने में मुश्किल हो जाती है और बंदा उन डेप्थ में चला जाता है चीज़ों में, और बजाय इसके कि वो बस ओवरव्यू ले और उन चीज़ों को फॉलो करे। तो ये जो है वो माइकल कोरे की है और माइकल कोरे की डिफरेंट और भी थियोरेटिकल वीडियोस हैं। मैं यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो जिसका दिल करे बाकी वीडियोस देखने का और थियोरेटिकल चीज़ें चेक करने का वो चेक कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। Here we are back with another video and with a whiteboard, which is a good thing because whiteboards make every video like 10 times more interesting. And what we're going to do is go through this process step by step to figure out how many calories you need a day to gain muscle, lose weight, or maintain. And this is probably the most frequently asked question I get. And when I get this question, I wish there was some way I could just tell you a generic number and yeah, that's good. But to be honest, it is different for every single person because we all have different energy needs just through our day-to-day life. Whether you work a really physical job like construction or you're a student and work at a desk most of the day, you see you're gonna burn a lot more calories doing the construction than you are just sitting at your desk all day. So there's a process. That's why I have this whiteboard to hopefully make it easier for you guys to understand and to make it more interesting, like I said, because this उसने इतने से पार्ट में ये बताया है कि मैं आपको कैलोरीज कैलकुलेट करने का तरीका बताऊंगा। उसमें डिफरेंस ये होगा कि जो आपने चीज़ें नोट करनी है कि जो बंदा ऑफिस में बैठ के जॉब करता है उसके लिए क्या तरीका है, जो बंदा मतलब कि डेली वर्कआउट करता है उसके लिए क्या तरीका है, जो बंदा कंस्ट्रक्शन का काम करता है जिसका कैलोरी ज़्यादा बर्न होती हैं और वो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करता है तो उसके लिए क्या डिफरेंट होगा थोड़ा सा मेथड में। तो इन चीज़ों को बाकी हमने देखना है और पहले आपने उसमें ये भी चेक करना है कि आपका गोल क्या है। आपने वेट गेन करना है, आपने वेट लॉस करना है या आपने वेट मॉडरेट रखना है, मतलब आप जितना आपका वेट है उतना ही रहे और आपकी बॉडी शेप में हो जाए। probably isn't going to be the most exciting video, but I think the end result will be really helpful. So the first step that you really need to do is you need to know your current goal. And this could be a number of things. Do you want to gain weight, lose weight, or maintain your current weight? So to gain weight, you need to eat in a surplus of calories, or just a better way to put it would be more calories in a day than you burn. And it's the exact opposite for losing weight. And then if you want to maintain weight, it is equal. So you're going to eat the exact amount that you are burning through your day-to-day activities. So once you figured out that, let's go on to step 2. And step number 2 is to calculate your BMR. And BMR is short for basal metabolic rate. And this is the amount of energy that you need just to survive. Let's say you were not doing anything whatsoever. तो अगले पार्ट में उसने सेकंड नंबर स्टेप में बताया है कि आपने अपना BMR कैलकुलेट करना है। BMR है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है जो आपकी हाइट, आपका वेट और आपकी एज है उसके हिसाब से एक रेट काउंट होता है और वो आपको बताता है कि आपको डेली कितनी कैलोरीज खानी चाहिए तो आपका वेट मॉडरेट रहेगा, मतलब जितना आपका वेट है उतना रहेगा। आपको ज़िंदा रहने के लिए या आपको डेली के जो टास्क करने के लिए कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं तो आप मॉडरेट वेट पे रहेंगे। तो उसको कैलकुलेट करके और फिर उसमें जो चेंजेस करनी है या जो उसमें चीज़ें एडिशन करनी है वेट गेन करने के लिए और वेट लॉस करने के लिए वो अगले स्टेप्स में बताएंगे।
just laying in a bed like in a coma or something. This is how many calories you would need for your body just to keep going, because believe it or not, you do need calories, which is important for a number of reasons, just to keep your body going, your heart beating, your breathing, digesting, all of that takes energy. So going on a no-calorie diet is really dangerous, and you shouldn't do it if you want to lose weight. I'll show you guys how to lose weight safely later on in this video. So to figure out your BMR, you need to know 4 things, and I've made up an example person here, pretty similar to what I am in real life. And you need to know, are you a male or female? वो ये कह रहा है कि BMR जो है उसको कैलकुलेट करके जितनी कैलोरीज आती हैं, जो एक रेट आता है, वो मतलब आपके ज़िंदा रहने के लिए, आपके हार्ट बीट के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आप अगर दिन में कुछ भी काम नहीं करते, सारा दिन आप बेड पे पड़े रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कोमा में है तो उसको ज़िंदा रहने के लिए और अपना बॉडी हेल्दी रहने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए होंगी, तो उसको कहते हैं BMR, बेसल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। I hope you know that. You need to know how old you are. Again, I hope you know that as well. You need to know how tall you are in feet and inches. So if you're on the metric system, just Google conversions. And the same thing goes for kilograms to pounds. There's a conversion. If you're doing kilograms, I think you multiply it by 2.2. But again, Google is probably your best friend for this kind of stuff. And there is a math formula to figure all of this out. So once you know all of this, you could get the formula online. But let's be honest, it's much easier just to plug it all into a calculator. And the link for that is down below in the description. So you might want to pause the video at this point, go down below in the description to the BMR calculator, plug in your numbers, and then come back to it. And I've already done that right here on my iPhone. I use the example. तो उसमें उसने जो सबसे पहली चीज़ ली है वो आपको पता होना चाहिए कि आप, वो कह रहे हैं आपको पता होगा बिल्कुल कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद आपको अपनी एज पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको अपनी हाइट पता होनी चाहिए, या तो फीट में या तो इंचज़ में। उसके बाद अगर आपको फीट में पता है तो उसको इंचज़ में चेंज करने के लिए आप गूगल पे जाके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अपना वेट पता होना चाहिए पाउंड्स में। तो अगर आपको केजीज़ में पता है तो आप उसको भी जाके गूगल पे पाउंड में चेंज कर सकते हैं। तो उसने फार्मूला बताया है जो कि अभी पीछे गुज़रा था, लेकिन उसका ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि भाई आपको जो BMR है उसको कैलकुलेट करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगा। उस कैलकुलेटर पे जाकर वहाँ पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन ऐड करके और फिर जो है आप अपना BMR कैलकुलेट करें। इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आप BMR कैलकुलेट करने के लिए अपने बॉडी वेट से, अपने हाइट से, अपनी एज से जो है वो उस जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें जाके अपने कैलकुलेटर में ऐड करके तो BMR कैलकुलेट कर लें। तो जब आपका BMR कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है person, and what we get is a BMR of 2,052 calories, but you can round it down or up, it doesn't really matter. So for this example, let's just say 2,050 calories. And moving on to step number 3, now that we have our BMR, so we know how many calories we burn at total rest, we have to take into account our activity factor. And like I said earlier, this is a part where it's really different for everyone based on your job and how often you work out. So for this example, there are 5 different activity factors. Number 1 is sedentary, and this is basically nothing. You sit on your computer all day, you don't have a job that is really physically demanding, and you don't really work out at all. So if that's you, remember that, you're sedentary. You should probably change that. The second classification is lightly active, and this is maybe working out 1, 2, 3 times a week. So you're not really that serious about working out. Maybe you're just starting and you don't want to overwhelm yourself. If that's you, you are lightly active. Number 3, we have moderate, and this is probably the person that works out every other day. So 3 to 5 times a week would be moderately active. Number 4, we have active, and this is probably the person that works out 6 to 7 times a week. So they're pretty serious about working out. They don't like to miss their workouts at all. That's probably me right there. I'm probably active. And if you are one of the people that like to work out a ton, and if you have a really physically demanding job like construction, picking up heavy things, hammering, and you're sweating on the job all the time, you are probably considered to be active.
active. So hopefully you guys can look at these categories right here and determine which one suits you the best. And like I said, when I was going through these, for my example person, we are going to say that he is active. And remember, the BMR is right here at the top, and that is the number that's going to be different for every. तो फर्स्ट स्टेप में ये था कि आपको बताना चाहिए आपका गोल क्या है, वेट गेन है, वेट लॉस है, या आपने अपना वेट मॉडरेट रखना है और अपने आप को फिट रखना है। सेकंड स्टेप में ये था कि आपने BMR कैलकुलेट करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप अपनी डिटेल्स ऐड करके तो BMR कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें एक्टिविटी फैक्टर आपने अपना काउंट करना है। एक्टिविटी फैक्टर्स में क्या है कि उसने 5 पॉइंट्स बनाए हैं। एक जो है वो सेडेटरी है, जो कि सेडेटरी मतलब कि जो बंदा जिसकी जॉब हो, जो बैठ के जॉब करता है, ऑफिस जॉब है, कोई इतनी उसकी एक्टिविटीज़ नहीं है और वर्कआउट भी नहीं करता, तो उसका जो उसने पॉइंट रखा है वो 1.2 रखा है। उसके बाद लाइट एक्टिव जो रखा है उसका BMR है 1.375। लाइट एक्टिव जो जिसका ज़रा काम इस तरह का खुद घूमने फिरने का थोड़ा सा काम है और वो ज़रा सा एक्टिव है और मतलब कि सारा दिन बैठे नहीं रहता, बल्कि बाकी भी चीज़ें करता है और ऑफिस के बाहर भी जाता है, कभी एक जगह से दूसरी जगह भी जाता है, लेकिन वर्कआउट नहीं करता। अगर वर्कआउट करता भी है तो वीक में 1 दफ़ा 2 दफ़ा करता है। उसके बाद आ जाता है मॉडरेट वो हैं जो वीक में 3 से 4 दफ़ा वर्कआउट करते हैं और बाकी काम उनकी जॉब जो भी है वो जैसी भी है, लेकिन वो वर्कआउट करते हैं वीक में 3 से 4 दिन। उसके बाद जो है वो आ जाता है एक्टिव। तो एक्टिव वो हैं जो वीक में 5 से 6 दफ़ा वर्कआउट करते हैं और बाकी जिस तरह की भी जॉब है उनकी, तो उसका जो पॉइंट रखा है उसने वो 1.725 रखा है। और वेरी एक्टिव जो 5वें नंबर पे हैं वो उन लोगों के लिए है जो कि कोई फ़िज़िकल जॉब करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं या जो कोई इस तरह की जॉब करते हैं जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आर्मी से रिलेटेड चीज़ें होगी, या कोई होते हैं जो फ़िज़िकल ट्रेनर्स भी होते हैं और कंस्ट्रक्शन की होती है। और उसके अलावा आप कोई वेट जिस तरह के आप कोई सामान लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, उस टाइप के जॉब होगी, तो जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं ज़्यादा। आप सारा दिन घूमते फिरते रहते हैं और सामान उठाते रहते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं और आपकी बॉडी इन्वॉल्व होती है उसमें ज़्यादा, आपका काम इस तरह का है, तो उसमें पॉइंट उसने रखा है 1.9। तो अब आपने इसमें देखना है कि आपका जो है वो एक्टिविटी फैक्टर क्या है, तो उसको आपने चूज़ करना है। उसने जो एक्टिविटी फैक्टर लिया अपना वो एक्टिव पे लिया है 1.725 पे। तो उसके बाद जो 4th स्टेप है वो क्या है? Everyone, so let me just go ahead and erase 1, 2, 3, and 5 and just leave active for the example. And if you're not active, you can go back and pause the video on the screen, or I'll put the directions down below in the description. So what we're going to do is take our BMR up top. So we have 2,050 calories. And remember, this is our example person, how many calories he needs just to exist. And what we're going to do is multiply that by our activity factor. So again, this is for the example, he is considered active. This may not be you, but you're gonna multiply it by this number right here. So active is 1.725. And we get roughly 3,500 calories. And this is if he wants to maintain his current weight, because remember what we did was we took his basal metabolic rate and multiplied it by his activity factor. And this number is going to be a good indicator of what he should eat every single day just to maintain his weight. Now, I know the title of the video says gain weight or lose weight, so let's cover that in the next step. So जो है वो 4th स्टेप में ये है कि एक जो हमने एग्जाम्पल पर्सन के लिए BMR कैलकुलेट किया था जो कि 2050 था, उसके बाद उसने एक्टिविटी फैक्टर उस एग्जाम्पल पर्सन के लिया है 1.725 जो कि एक्टिव के लिए लिया है, और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो कैलोरीज आई हैं वो है 3,500। तो 3,500 जो कैलोरीज हैं वो हैं जो आप खाओगे दिन में, तो आपका वेट मॉडरेट रहेगा, मतलब वेट आपका बराबर रहेगा। और जो 2050 थी वो सिर्फ आपके ज़िंदा रहने के लिए जो आपको कैलोरीज चाहिए रोज़ की वो हैं, तो जिसको BMR का टर्म दी गई है। तो उसके बाद जो 3,500 कैलोरीज हमारे पास आई हैं
वो हम सिर्फ वेट मॉडरेट के लिए है, मतलब जो बंदा जॉब कर रहा है और जो बंदा जो भी एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कि कोई बंदा कंस्ट्रक्शन में है और वो उसका BMR बन रहा है 2050 और फिर उसका जो एक्टिविटी फैक्टर है वो बन रहा है 1.9, तो वो मल्टीप्लाई करके जितनी भी कैलोरीज आएंगी वो उसको चाहिए होंगी रोज़ की अपना वेट मॉडरेट रखने के लिए। लेकिन अगर वो बंदा कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ उसने ज़िंदा रहना है, घर पे लेटा हुआ है या कोमे में है या उसको बस ज़िंदा रहना है और वो घर पे ही है और बेड पे है, तो उसको जो एग्जांपल पर्सन को चाहिए वो हमारे पास BMR होगा। तो यहाँ पे जो एग्जांपल पर्सन के लिए थी वो 2050 थी, फिर उसका एक्टिविटी फैक्टर निकाला 1.75 जो था वो एक्टिव का, जो वीक में 5 से 6 दफ़ा वर्कआउट करते हैं उनके लिए। उसके बाद वो मल्टीप्लाई किया और 3500 कैलोरीज जो आई हैं उसकी, उस पर्सन की जो 5 से 6 दफ़ा वर्कआउट करता है वीक में, उसको कैलोरीज चाहिए 3500 अपना वेट मॉडरेट रखने के लिए। अब उसमें जब उसने वेट लूज़ करना है तो क्या चेंजेस करनी है और वेट गेन करना है तो क्या चेंजेस करनी है। If you guys remember back to step 1, I said that you should know your current goal. Gain, lose, or maintain your current weight. And with step 4, it's really easy. You just have to do some basic addition or subtraction. Most of the math is out of the way besides this part right here. So we have our example guy right here. And this is our BMR after we multiplied it by the activity factor. So he needs to eat this amount just to maintain his current weight. So let's look at weight loss first. So as you guys can see, I drew a little arrow down here off to the left. We have a deficit of 500 calories. So just subtract 500 from this number and we get 3,000. So 3,000 is what he would need to eat to lose around 1 pound a week. And then on the other end of the spectrum, we have a surplus. So our example would be eating more calories in a day than he burns, putting them into a calorie surplus, and just for this I put 300. That's normally a pretty good example, and that would be 3,800 calories. So we're left with 3 numbers. We have what he needs to eat to lose weight, what he needs to eat to maintain his weight, and what he needs to eat to gain weight. A couple final things to note is that these numbers are really just starting points, and this is a good place to start if you have no idea what you're doing. And over time, if you're tracking your macros and your calories, you can weigh yourself periodically or just kind of look in the mirror and say, how do I feel, how do I look, do I really think I'm gaining enough weight, or maybe you're gaining too much. लास्ट स्टेप में उसने ये किया है कि जो 3500 कैलोरीज हमारे पास निकली थी वेट मेंटेन रखने के लिए, उसमें से आपने या तो सब्ट्रैक्ट करना है या तो आपने उसमें ऐड करना है। तो सब्ट्रैक्ट वो करेंगे जिन्होंने वेट लूज़ करना है। तो 500 जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 300 रह गए, 3000 रह गए। तो जो 3000 आपके पास रह गए हैं वो आपके पास कैलोरीज़ हैं वेट लूज़ करने के लिए, जो आपने रोज़ की कैलोरीज़ कंज्यूम करनी है। और अगर आपने वेट गेन करना है तो आपने 3500 के अंदर 300 कैलोरीज़ ऐड कर दी हैं, तो आपके पास आ गया 3800। तो ये जो आपके पास 3800 कैलोरीज़ आई हैं ये आपको कंज्यूम करनी है रोज़ की वेट गेन करने के लिए। और अगर आप ये कैलोरीज़ रोज़ खाते हैं तो एक मंथ में आपका 1 पाउंड वेट गेन होगा। और अगर आप वो 500 माइनस करके खाते हैं, जैसे कि 3000 आप कैलोरीज़ खाते हैं, तो आपका 1 पाउंड वेट लॉस होगा एक मंथ में। तो उसके बाद जो 3 हमारे पास टर्म्स निकली हैं वो एक वेट लूज़ के लिए है, एक वेट मेंटेन के लिए है और एक वेट गेन के लिए है। Weight. And in that case, you can cut back on the calories and just tweak it. It's trial and error, like I've said, and it's something that takes a long time to get down. But this is probably the most accurate way to figure it out, and it's a great starting point. So that's pretty much it for this video. I hope you guys enjoyed it. If you did and you're still watching, I'd appreciate you giving it a like. This video took me a long time to make. I've been filming for 45 minutes. तो वो लास्ट पार्ट में वो ये कह रहा है कि आप फर्स्ट करें 3000 कैलोरीज़ कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, तो उसमें से आप थोड़ी सी और कैलोरीज़ कट डाउन कर लें। और अगर आप 3800 कैलोरीज़ खा रहे हैं लेकिन आपका वेट गेन नहीं हो रहा तो उसमें आप थोड़ी सी कैलोरीज़ और ऐड कर लें, क्योंकि आपकी बॉडी जो उस चीज़ पे रिस्पॉन्स दे रही है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो उस चीज़ में कंसिस्टेंट रहें
और अगर आपकी उसमें रिज़ल्ट्स डिफरेंट नहीं आ रहे तो रिज़ल्ट्स चेंज करने के लिए या मतलब कि अच्छे रिज़ल्ट्स लेने के लिए जो आपका गोल है उसके लिए आप कैलोरीज उसमें ऐड या उसमें और सब्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि मे बी जो आपकी जो डेफिशिएंसी आ रही है कैलोरीज़ की वो बॉडी पे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपका वर्कआउट में भी डिफरेंस हो सकता है, मे बी पूरे वीक में मे बी आपके जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी डिफरेंस हो सकता है। तो उन चीज़ों को, सारे फैक्टर्स को ज़हन में रख के अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा या आपका वेट गेन नहीं हो रहा तो आप उसमें 200 कैलोरीज़ एक्स्ट्रा प्लस या माइनस कर लें। तो यही सबसे आसान तरीका और सबसे इजी तरीका है वेट लॉस के लिए कैलोरीज़ कैलकुलेट करने का, वेट और वेट गेन करने के लिए कैलोरीज़ का। और अगर आपने वेट मॉडरेट रखना है, अपने आप को फिट रखना है, तो उसके लिए भी कैलोरीज़ कैलकुलेट करने का। तो जो BMR कैलकुलेट करने का लिंक है वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आपने वहाँ से BMR कैलकुलेट करके फिर उसके बाद बाकी सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मज़ीद किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो कवर करूं तो वो मुझे सजेशंस लाजमी दीजिएगा कमेंट में, और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।